This create conference will now be recorded. so now first of all I'm create one region, select a region. Inside the region I'm create one virtual machines Linux, and inside the virtual machines first I'm install a git, and after install I'm create a one repository, or after create the repository now I'm connect the repository with git. तो ये process मैं कर रहा हूँ. So now I'm just go to Mumbai region. At this time I'm available in a Mumbai region. Now click launch instance. I'm select the Amazon Linux. Next. T2 micro. Next. Next. Select the next. Give the name is like a git. Then next. Select the security group. Review and launch and select the key pair. And now launch instance. So yeah, this is the first process. Last class we have covered how to push and pull code from a distributed repository. Now just we have in how to clone repository, and how to create branch, how to merge branch, how to delete branch. So वो सारी चीजें हम cover कर चुके थे कल के lectures में. So now here I'm just click. So and just wait. The copy the public IP of this particular machines and go to putty, and new sessions, and then so guys this is my Amazon Linux. I'm just rename. This is a last time मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, not for your batch, for another batch, कि सर क्या हम लिनक्स या उबंटू में कोई फर्क है? तो guys there is no any difference. तो सेम ही प्रोसेस उबंटू का भी है. नाउ आई एम क्रिएट वन मोर मशीन इन उबंटू, क्योंकि आपको पता है कि काफी जगह नॉट अमेजोन और रेडिट लाइनक्स आप कोई भी लिनक्स यूज कर सकते हो. सर देखिए मैक ओएस भी यहाँ पे एड ऑन हो गया, पहले मैक ओएस नहीं था. रेडिट भी है, आप कोई भी ले सकते हो. नाउ आई एम यूजिंग द उबंटू. so I'm just click on select, then next. So now guys I'm using the ubuntu machine also. so आज मैं आपको ubuntu भी लेके parallelly चल रहा हूँ. like I'm give the 10 GB space, add, and this is like a ubuntu ubuntu git. आप चाहो तो रेडिट की मशीन भी ले सकते हो. तो यू कैन चॉइस कि आप yesterday हमने लिनक्स, अमेजोन लिनक्स और विंडोज लिया था. आज हम क्या करते हैं, अमेजोन लिनक्स और उबंटू ले लेते हैं. दैट मीन द डिफरेंट वेंडर्स. So they're the same process. How to deploy, how to launch instance in our AWS cloud. Is it clear, everyone? Bipul, Vikas, Ravi, Kalpreet, everyone. Yes. Now, guys, here I'm using this Git is available in Amazon Linux. And one machines I'm deploy in a Git. जरूरी नहीं है कि all user are use the same operating system. कोई Windows 10 यूज कर रहा है, कोई सर्वर यूज कर रहा है, कोई Reddit यूज कर रहा है. So you can use any operating system, does not matter. The process is कि Git अपना एक खुद का कंसोल देता है, अपनी खुद का एक बेस्ट कंसोल देता है, वहां पे सारी कॉन्फ़िगरेशन है. So the Git command is completely same. Either you work in Ubuntu, either you work in Microsoft, either you work in a Reddit or Amazon Linux, any Linux. So now I'm just click. But the difference is कि when you log in with the Amazon Linux or Reddit Linux, the default username is EC2. But when you log in with the Ubuntu, the default username is Ubuntu. So now I'm logged in with this machine. So this is my Amazon Linux. Again, I'm just here, new session, and give the name is called give the
and at this time here the username is Ubuntu and advanced and private key, and select the same key pair because I'm using the same key pair. What and now at this time this machine is also open and this is my. अब दोनों में गाइस डिफरेंस क्या है कि Amazon Linux जो है इट इज अ Red Hat फैमिली, इट इज अ Red Hat फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे व्हेन यू वर्क फॉर द एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सेलेक्ट कि दिस ऑपरेटिंग सिस्टम बिलोंग टू विच फैमिली, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है. सो नाउ हाउ टू चेक, फर्स्ट आई एम गो टू sudo su hyphen, I'm login with nor super user, and after that you can just like the cat is the for open the file. अगर आपको किसी भी फाइल का कंटेंट देखना है you can tap the cat /etc डायरेक्टरी हमारी होती है all जितने भी Reddit की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं, the all configuration file save in /etc direct, or I'm see the OS release. So if I'm just click here, you can see the name of operating system is Amazon Linux, or this is a family of Red Hat. तो RHEL, तो CentOS, RHEL, Fedora, तो ये हमारा जो है Red Hat फैमिली का है. तो यानी कि Red Hat फैमिली की कमांड्स और इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स कंप्लीटली सेम होंगी. But if I'm go to the Ubuntu, or when you clear, and now we can type sudo su hyphen, and you can type the cat, the Linux command is same, the operating system is maybe different, and /etc, and is it the OS release. And now see at this time this is a Debian family, this is the operating system name is Ubuntu. So guys Ubuntu जो है वो Debian family का है, so it is a Debian family. So यहाँ पर क्या है कि these are the operating system of Ubuntu and this is the operating system of Linux, Amazon Linux. So this is a command how to check the OS version or its work in which family. So now next option is available, like each and every cloud service provider create a one repository. उन्होंने अपनी एक repository create करी हुई है and this repository called a yum. तो क्या देखिए वेंडर डिफरेंट है तो इसलिए सेम नाम तो रख नहीं सकते. तो यहां पर क्या ये Red Hat फैमिली का, तो यहां पर है यम के नाम से, और यहां पर अगर Ubuntu फैमिली है तो यहां पर चलता है apt-get, और दोनों में क्या है द ऑल पैकेजेस स्टोर, और जितने भी पैकेजेस होते हैं वो सारे के सारे Red Hat के पैकेजेस कहां पर होते हैं, इस लोकेशन पे होते हैं. तो अगर आपको लिनक्स पे, अगर आप Ubuntu Debian फैमिली का अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो, और आपको अगर गिट इंस्टॉल करना है तो आप कमांड चलाओगे apt-get, और अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो गिट कहां पर, Red Hat फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यू कैन कमांड चलाओगे yum. So these are the different. Now I'm just go to here. At this time I'm available for Amazon Linux, and now we have typed the, first of all I'm update the repository. So yum update Debian का मतलब है this is a vendor, like a Microsoft is a family. So Windows 10, Windows 7, Windows 8, Server 2008, SQL Server, these are the family of Microsoft. ये सारी Microsoft ने deploy करे हैं. So yum update -y. So now here I'm update the repository. So is it the lag packet loading plugin? No such command. Wait, I'm available in yum. Sorry, update की spelling गलत हो गई. yum update -y. तो yum up update up. अबे यार, तो यहाँ पर yum update मैं कर रहा हूँ. नो पैकेज देयर नो एनी, क्योंकि ऑलरेडी अपडेटेड है. इफ आई एम Ubuntu पे आता हूँ गाइस, सो Ubuntu पे अगर आप डॉकर वगैरह कोई भी करेंगे तो ऑलवेज सबसे पहले आपको अपनी रेपोजिटरी अपडेट करनी पड़ेंगे. तो यहाँ पे मैं चलाऊंगा apt-get
अपडेट -y। तो दोनों जगह में डिफरेंस सिर्फ क्या है, सिर्फ एपीटी लग जाएगा व्हेन यू वर्क द उबंटू, बाकी सेम कमांड्स हैं। नाउ अब आपको अगर यहां पर गिट इंस्टॉल करना है तो यू कैन टाइप yum instll install git -y। y का मतलब क्या है कि अगर मैं y नहीं लगाऊंगा तो ये मेरे से यस या नो पूछेगा कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं। इसलिए मैं पहले ही क्या कर रहा हूँ, ये y लगा दे रहा हूँ। अगर मैंने y नहीं लगाया तो अब मैनुअली आपको यहाँ पे y प्रेस करना पड़ेगा, देन इट्स इंस्टॉल। बट अगर मैं पहले ही y लगा दूंगा तो मेरे से ये पूछेगा ही नहीं। तो लाइक यहाँ पे इंस्टॉल कैसे होगा, द apt -get install yum -y, sorry, install git -y। So is it clear guys how to install git in a Red Hat Linux, or how to install a git Amazon Linux, or how to install a git of a Ubuntu? Guys एक चीज ध्यान रखना, when you create a Red Hat machines, तो Red Hat मशीन पर आपका yum सर्वर अपडेट होने में अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। Now clear. Up you can see I'm create a one directory. So now I'm again create a one directory with the name of mkdir, the same command. Or like I'm create a directory is called like vikas vikas -repo repo, and like ls. So at this time you can see the one directory is created vikas repo, and then I'm go to the inside the vikas cd vikas, or then I'm just type the command git get initialize init. Yeah, or at this time you can see and now guys you can see कि अब ये मेरी क्या initialize हो चुकी है, and now check get status. So there's a no any branch or no anything else is available. The same command is there. Now I'm create a one directory with the name of like mkdir with the name of vipul vipul hyphen repo repo, and now cd vipul, and now get init init, and now clear. So now guys I'm create one directory, and both side I'm create a repositories। बाकी सारा काम आपको पता है कि आगे का पूरा प्रोसेस क्या है। So now in a last class I'm explain you कि how to create a repository and how to create a branch, these everything. So now today I'm just explain you the some little bit some other points, like there's a one option is available is called a git ignore. One more is available git ignore. What is the meaning of git ignore? So guys git ignore का मतलब है, what is the meaning of ignore? Ignore का मतलब skip करना, one kinds of, yes or no? गाइस रिप्लाई दे दिया करो, नहीं तो मुझे लगेगा आप लोग सो रहे हो। विकास, विपुल, रवि, स्किप करना, इग्नोर करना, तो Yes, sir. लाइक साइट करना। सो गाइस दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट कि यू आर अ डेवलपर। अब आपने क्या करा, आप चाहते हो आप गिट में एक ऐसी सेटिंग डाल के रखना चाहते हो कि व्हेन अगर आपकी कोई भी डॉट एनी डॉट जावा से रिलेटेड या डॉट पीएचपी से रिलेटेड, या मैं कहता हूं डॉट लाइक सीएसएस से रिलेटेड कोई भी फाइल्स बने, उनको ये इग्नोर कर दे। यानी कि उन फाइल्स को कमिट ही ना करे, उनको वो इंट्रोड्यूस ही ना करे, उनको कोई प्रायोरिटी ना दे, यानी कि कंप्लीटली उनको क्या कर दे, स्किप कर दे, इग्नोर कर दे। गॉट इट? सो लाइक आप एक ऐसा मेथड डालना चाहते हो कि गिट क्या करे, उन सारी चीजों को इग्नोर कर दे। सो उसके लिए आप यू आर यूजिंग द गिट इग्नोर, कि भाई जरूरी नहीं है ना कि मेरी हर फाइल को वो क्या करे, कमिट करे, या हर फाइल को वो गिट के अंदर लेके जाए। मैं नहीं चाहता कि हर फाइल को वो गिट के अंदर जाए, मैं तो स्पेसिफिक फाइल के फॉर्मेट को लेके जाना चाहता हूं कि इस फॉर्मेट से रिलेटेड मेरी क्या जाए, वो फाइल कमिट हो। सो नाउ हाउ टू क्रिएट अ गिट?
सो इसका सिंपल सा वे है गाइस, फर्स्ट यू क्रिएट अ वन इग्नोर फाइल। सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, एक इग्नोर फाइल बना के उसको कमिट करना पड़ेगा। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक git एंड नाउ यहां पर मैं एक फाइल बना रहा हूं विद द नेम ऑफ touch touch एंड touch डॉट git ignore। द फाइल नेम जो है सेम ही रहेगा, तो डॉट गेट इग्नोर के नाम से ही गाइस फाइल बनेगी। सो आई एम क्रिएट अ वन फाइल touch dot git git ignore and now I'm just added this file vim dot git ignore, so vim dot git git ignore ignore एंड नाउ गाइस इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कंटेंट टाइप करूंगा कि जो भी चीज मेरे को एडवर्टाइज नहीं करानी, यानी कि जिस भी चीज को मैं स्किप करना चाहता हूं, लाइक मैं यहां पे चाहता हूं कि स्टार, स्टार का मतलब है गाइस एनी नेम, दैट स्टार मतलब एनी नेम, फाइल का चाहे कोई भी नेम हो, डॉट जावा से रिलेटेड फाइल हो या स्टार डॉट सीएसएस से रिलेटेड कोई भी फाइल हो, इन फाइल्स को ये क्या कर दे, ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दे। और नाउ escape colon wq and now we can see the git status. So at this time dot git ignore file is available and I'm type the git add dot and git commit hyphen m and between inverted comma the ignore css and java files and now enter। तो देखिए गाइस, मैं यहां पर अगर कमिट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कल भी आपको बताया था कि आप जब तक कमिट नहीं कर सकते हो जब तक आप अपना यूजर नेम डिफाइन नहीं करोगे। सो आई एम इंस्टॉल द गिट बट आई एम नॉट प्रोवाइड द एनी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। सो नाउ फर्स्ट आई एम सेट द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, सो गिट config hyphen hyphen global user dot name name between inverted comma is called vipul vipul and now the email id vipul@gmail.com and now if I'm type the commit command, then it's working. So nothing to commit, working tree is clean and now you can see the git status status. So there's a no anything or like a git log, तो you can see कि यहाँ पर आपका एक commit हो चुका है and now I'm just clear। तो ये जो commit करा है author root था इसका, ठीक है, commit कर दिया बट उसने फिर भी मेरे को एक error दे दिया था, but now यहाँ पर root मेरा है, so root ने इसको करा था and now clear। अब गाइस आता है इग्नोर। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारी फाइल्स इग्नोर हो रहे हैं। तो नाउ गाइस आई एम क्रिएटिंग अ 5 फाइल, मैं यहाँ पे 5 फाइल्स बना रहा हूं। नाउ आई एम क्रिएटिंग अ 1 फाइल फॉर जावा, 1 file for PHP, 1 file for like a CSS and 1 file for text। तो 4 files create कर रहा हूं, so like a touch touch file file 1 dot java, file 2 dot css, file 3 dot php and next is normal file 4 and now you can see guys ls at this time the all files are available, but when you check कि क्या आप इन सारी फाइल्स को कमिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो स्टेजिंग एरिया में, तो यू कैन सी कि आपका जो वर्किंग स्पेस है, यू कैन चेक गेट status स्टेटस, तो वर्किंग स्पेस में सिर्फ आपको 2 ही फाइल दिख रही हैं, डॉट जावा और डॉट css डिस्प्ले नहीं हो रही है। Why? Because I'm already at the git ignore। Clear everyone?
Guys, is it clear? Kavalpreet, any question? Bipul, Ravi, Vikas, Pragya? Now this is the option of git ignore. Then next one more option is available. Is it branches? I'm already explain you what is the branch, how to create branches, these everything I'm already create. So like मैं अगर branches के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे और explain कर देता हूँ theoretically. The each task has one separate branch. अगर आप कोई भी काम यहाँ पे करते हो ना वो separate branch होगा. Like if you can see like a git branch. So you can see the currently the master branch. When you create a branch, so just simply git branch or give the branch name is like a HR branch or like Java. Java का प्रोजेक्ट है, so मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक Java. And then you can again check git branch. So you can see at this time there the two branches are available. So when we create a master to Java, so automatically existing data copy master to Java one time. So file create in a workspace will be visible to any branch. अब आप कोई भी फाइल अगर क्रिएट करते हो वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर या वर्किंग स्पेस के अंदर, तो वो आपकी विजिबल होगी क्योंकि आप उसको किसी भी ब्रांच के अंदर मूव करा सकते हो. क्योंकि आप जिस भी करंट प्रेजेंट ब्रांच आपकी जो होगी, जिस भी ब्रांच से आप लॉगिन होगे, उसी ब्रांच के साथ क्या होगा, वो आपकी उसी ब्रांच के अंदर वो फाइल पर्टिकुलर फाइल मूव हो जाएगी आपकी. नाउ देन नेक्स्ट हमारा एक और आता है कि हाउ टू मर्ज ब्रांच. कल हमने ब्रांचेस को मर्ज भी करा. देन हाउ टू रिमूव इग्नोर. बट इसके अलावा एक और चीज आपके आती है गाइस, इट इज अ गिट रीसेट. So one more option is available, git reset. What is the use of git reset? So now I'm create again files. I'm create again 2-3 files. So like I'm create like file if touch. Or now I'm create a file with the name of like Ravi space Vikash and like VIPUL Vipul. Suppose karo I'm creating the 3 files and all 3 files is a text files. So now you can see the git status, these all files show in here. And now I'm just commit. So like I'm just add this file in a staging area. So you can type the git add dot. And now you can check the git status. At this time the color is changed and the file move staging area. तो हमारा जो फाइल है वर्किंग स्पेस टू मूव हो चुकी है स्टेजिंग एरिया. एंड नाउ यू कैन सी the option. I'm type the one command git reset and first I'm clear, then clear clear, and now I'm just type the command git status. So at this time these are the 3 files are available in my staging area. So after commit करने के बाद आप reset नहीं कर सकते हो, before connect आप reset कर सकते हो. I'm type the git reset like मेरे को इसके अंदर रवि की और like का रवि. What is the output guys? अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए? विपुल, रवि, विकास, एनीवन कोई बताएगा क्या रिप्लाई आना चाहिए अगर इफ आई एम टैप द गेट रीसेट रवि? व्हाट इज द आउटपुट? रवि, एनी आइडिया? विकास, विपुल? No, sir. देखिए गाइस, आउटपुट इज, कुछ पता लगा क्या हुआ? Will be removed from staging area and come to staging area, sorry working directory. अगर आपने रीसेट कमांड चलाई तो वो कमांड वापस आपकी कहां पर आ जाएगी?
वर्किंग स्पेस के अंदर आ जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? गॉट इट द पॉइंट? रीसेट कमांड का यूज। नाउ इफ यू कैन टाइप डॉट, डॉट का मतलब है ऑल फाइल्स, सारी की सारी फाइल दोबारा से कहां पर आ गई? स्टेजिंग एरिया के से निकलकर वर्किंग डायरेक्टरी और वर्किंग स्पेस के अंदर मूव हो गए। तो अगर आप किसी फाइल को स्टेजिंग एरिया से वर्किंग स्पेस में लाना चाहते हो तो यू कैन यूज द रीसेट कमांड। लाइक आपने अभी कोड लिखा और आपका कोड कंप्लीट नहीं है और आपने उसको ऐड कर दिया, अब आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो क्योंकि आपको बाद में ध्यान आया यार ये मिसिंग है, कमिट करने से पहले आपने कहा यार ये चीजें मिसिंग है, मुझे ये चीजें चेंज करनी है, तो यू कैन यूज द रीसेट कमांड। और रीसेट कमांड से आप उस फाइल को स्टेजिंग एरिया से दोबारा से रिटर्न लेके आ सकते हो। And there's one more interesting command is available when we can just again add these all files and now check git add and check the git status। तो guys देखिए अगेन मैंने क्या करी, सारी की सारी फाइलें ऐड करा दी हैं एंड नाउ आई एम जस्ट टाइप द git reset command and hyphen hard hard। what is the output? अगर मैंने ये वाली फाइल ये वाली कमांड चलाई तो इसका आउटपुट क्या आएगा? When you type the command -hard, the all files completely delete from staging area and working space। तो अगर आपको अपना वर्किंग स्पेस या स्टेजिंग एरिया को इंटायर ब्लैंक यानी कि खाली करना है तो यू कैन टाइप द कमांड git -hard। Got it my point? Yes, sir. Now one more thing. Kawalpreet, is it clear? Ravi, Pragya? Pragya, all is clear? नया बाउंस जा रहा है। Now guys, one more important part कि देखिए आपको पता है कि नाउ सपोज करिए कि मैंने यहां पर ये 3 फाइल्स बनाई हैं, 1 then 2 and then 3। 1 ये फाइल बनाई है और लाइक इसकी कमिट आईडी में कहता हूं COMMIT कमिट आईडी जो है इसकी गाइस, इसकी जो कमिट आईडी है सपोज मैं ले लेता हूं C1001। नाउ आई एम क्रिएट अ सेकंड फाइल and the second file commit ID for example C1002 and the third file is it C003। अब गाइस आपने क्या कर दिया, आपने फाइल 1 को कमिट कर दिया। जैसे आपने फाइल 1 को कमिट करा तो ये फाइल 1 आपकी कहां पर जाके सेव हो जाएगी? मास्टर ब्रांच के अंदर। द फाइल सेव इन मास्टर ब्रांच। एंड जब आप कमांड चलाओगे यहां पर जाके कि git log -1 लाइन, तो गाइस ये आपको आपकी कमिट आईडी दिखाएगा C1001। एंड नाउ सेकंड कमिट जब आप करोगे तो वो दिखाएगा उसके बाद सेकंड जब कमिट दिखाएगा तो वो इसके ऊपर आएगा C1002। देन आप थर्ड कमिट करोगे तो वो इसके भी ऊपर आएगा। इस तरीके से चलता है ये C1003। बट आप चाहते हो और आपको पता है कि आप चेंज कर नहीं सकते, बट आपके पास एक ऑप्शन है, आप चाहते हो कि नहीं यार मेरा जो कमिट 3 है ना वो गलत हो गया है, मुझे कमिट 3 को तो करना ही नहीं था, मेरी गलती से कमिट हो गया है।
तो अब आप क्या करोगे, यू कैन यूज कि आपने जो आप चाहते थे कि 3 की जगह मेरा जो है ना 4 नंबर वाला फाइल जानी थी, 3 गलती से हो गई, 4 नंबर मेरे को करनी थी कमिट, बट गलती से मैंने कौन सी कर दी है, 3 वाली कर दी है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी कमिट आईडी लाइक COMMIT कमिट आईडी इज कॉल्ड लाइक C1004। तो आप यूज अ रिवर्ट, यू अगर आप गिट रिवर्ट काम करोगे तो गिट रिवर्ट क्या करेगा, गिट रिवर्ट काम आपके इस वाले को स्किप करके इस वाले कमिट को आगे कर देगा। वो क्या है, आप डिलीट नहीं कर सकते कमिट को, बट वो इसको क्या करता जाएगा, इसको पीछे करता हुआ चला जाएगा। तो आप जो भी कमिट अच्छा, करोगे ना, मतलब दोबारा पुश करने की जरूरत नहीं है कि मतलब नहीं दोबारा नहीं, पुश करेंगे तो वो तो वैसे निकल गया वहां से, है ना? वैसे तो वो है ही नहीं मेमोरी में, बि- पुश अप दोबारा बिल्कुल कर भी नहीं सकते ना? कर भी नहीं ओके। सकते ना, नई फाइल बनाओगे तो न्यू मॉडिफिकेशन आएगा, क्योंकि कमिट करने के बाद तो हमारा हम्म स्टेजिंग एरिया ब्लैंक ही हो गया ना, हम्म, हम्म, और वहां ठीक से है। रीसेट नहीं हो सकती है कमिट करने के बाद। तो एक बार जो मास्टर डायरेक्टरी हम्म, में चलेगी तो चले गए। तो यहाँ पर यही है, तो यहाँ पर क्या है कि आपने गलती से कमिट कर दिया, तो आप यहाँ पर रिवर्ट कमांड डाल सकते हो, और रिवर्ट कमांड पे कोई भी मैसेज डाल सकते हो, लाइक प्लीज इग्नोर दिस फाइल कमिट बाय डिफॉल्ट। तो इससे क्या है, अदरवाइज आपने सीक्वेंस में करा तो डेवलपर इसी में घूमता रहेगा, अरे क्या कोड लिख के भेजा, ये तो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा ना। और आपने इतनी सारी फाइल्स आपके रूटीन पे आ रही है, और गलती से अगर पर डे में मैं कहता हूँ 100 डेवलपर्स हैं, गलती से 100 में से 20 डेवलपर्स हैं बाय मिस्टेक गलत फाइल कमिट कर दी, तो वो गलत फाइल ही काफी सारी प्रॉब्लम कर सकता है अगर आपके पास ही कोई गलत कोड आ जाए तो। यस और नो एवरीवन? So the revert command help you undo on existing commit. So आप undo करना चाहते हो अपने existing commit को. It does not delete any data in this process with the included file revert to their previous stage. So किस तरीके से हम इस प्रोसेस को यूज करेंगे? So now I'm create a file. I'm create a 3 files. तो guys मैं यहाँ पे again 3 files create कर रहा हूँ, like I'm create a touch touch and file name is Codler like a INDIA India 1 and now मैं इसको पहले कमिट कर देता हूं, और इसकी कमिट आईडी आप देखना क्या है, फिर मैं इंडिया 2 के नाम से बनाऊंगा, उसको भी कमिट कर देता हूं, देन फिर इंडिया 3 बनाऊंगा, और 2 की जगह मेरे को 3 करना था। सो इफ यू नॉट डिलीट द फाइल व्हाट एग्जिट इट इज डूइंग, ये फाइल वहीं पर ही रहेगी, मतलब कमिट तो होगी, बट यहाँ पर आप क्या है, ये बैक एंड पीछे होता जाएगा, यानी कि फ्रंट एंड में नहीं आएगी, ये फाइल बैक एंड पे रहेगी हमेशा, यानी कि इसको जो पुराना नया कमिट है ना वो इसको स्किप करके आगे आता चला जाएगा। कहते ना कि यार वो भंडारा हो रहा है तो वो कहता है भाई तुम पीछे हो जाओ मैं आगे आ जाता हूँ, तुम पीछे हो जाओ मैं आगे आ जाता हूँ। गॉट इट? क्यू में तो रहेगा, बट आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से क्यू करना, और आप इस पे कमेंट डाल सकते हो इस फाइल को एडिट करके। तो अभी आपको मैं प्रैक्टिकली करूंगा तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। या अगर आप बिल्ड करोगे तो वहां भी इग्नोर हो जाएगा, और बिल्ड में जब आपकी डिस्ट्रीब्यूट रेपो में आएगी तो वहां से आप डिलीट कर दो मैनुअली, क्योंकि बिल्ड का तो यहाँ से प्रोसेस ही नहीं है ना, बिल्ड का तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड रेपो से है, यहाँ तो गलती से आपको हो गया है। लाइक टच इंडिया 1 एंड गेट स्टेटस, now you can see the get status status, and now get add dot and get COMMIT commit hyphen m and INDI India 1 COMMIT commit 1, and now enter and get log hyphen 1 line line। So you can see कि मैंने अभी इंडिया 1 कमिट करा है जिसकी कमिट आईडी है 345, तो 6cc0345, this is the India 1 file। Now I'm just create one more new file, is it touch India 2, and now get add, and now commit to India 2,
and at this time you can see guys कि मेरी इंडिया 2 है, इसकी जो कमिट आईडी इज 1AF, तो एक है 345 और एक है 1AF। तो ये एक तरीके से उस फाइल को ना हाइड करती हुई चली जाएगी। सो हाउ टू वेट गाइस 1 मिनट। Now I'm just type the new file. See, गलती से जो मेरी कमिट होने वाली है, तो दो तो मैंने कर दी, अब गलती से मैं एक कमिट कर रहा हूं git 3, यानी फाइल 3। मेरे को फाइल 3 ना करके फाइल 4 करनी थी। तो इंडिया 3 and now I'm just type VIM India 3. Hi, how are you? Escape colon WQ. And now git add and git commit 3 and commit 3। तो गलती से ये वाली फाइल मेरे से क्या हो गई, कमिट हो गई। तो यू कैन सी द git log -1 लाइन, और आप देखिए git 3 वाली गलती से कमिट हो गई, आपको कमिट नहीं करनी। अब आगे की कोई भी फाइल आएगी तो वो क्या होगी, इसके ऊपर ही आएगी। अब आप चाहते हो यार 580 नहीं होनी थी, यहाँ पे कोई और फाइल मेरी होनी थी, तो आप क्या करोगे, यू कैन जस्ट टैप द git REVERT revert। You can type the command git revert and जो भी आपको रिवर्ट करना है वो आप कर सकते हो। लाइक आई एम जस्ट गिव द कमिट आईडी, और इसकी जगह मैंने क्या कर दी, उसकी कमिट आईडी डाल दी, और नाउ इंटर। और यहां पे मैं क्या लिखता हूं, इसके अंदर मैं कंटेंट लिख देता हूं। यहां पे मैं i4 इंसर्ट टाइप करके, ये एडिटिंग मेरी खुल गई है, और यहां पे मैं लिख देता हूं 8, क्योंकि यहां पर एक आपको ये एडिटिंग दे रहा है रिवर्ट के थ्रू, वरना आप कहीं भी किसी भी फाइल को एडिट नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ आपको रिवर्ट कमांड के थ्रू ही मास्टर ब्रांच की किसी भी फाइल के पास एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है। बट यहाँ पे देखिए वो लिखा नहीं आ रहा जो मैंने कंटेंट इसके अंदर लिखा था, हाय हाउ आर यू। तो लाइक इट्स कमिट बाय मिस्टेक, प्लीज IGNORE इग्नोर। और मैंने यहां पर एक तरीके का कमेंट यहां पर ऐड कर दिया इसके साथ। एंड नाउ escape :WQ। तो गाइस मैंने यहां पे देखिए लिख दिया कि अब इस आईडी की एक आईडी तो बन गई थी, इट्स कमिट बाय मिस्टेक प्लीज इग्नोर। एंड नाउ यू कैन चेक अगेन। तो अब यहां पर देखिए ये एक आ रही है फाइल, मैंने जिसको एडिट कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये वाली फाइल बार बार ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहां पर आप कमिट डाल दिया, आप कोई भी इस फाइल को जाएगा तो ये एक तरीके से इसको हाइड या रिवर्ट नहीं कर रहा है। यानी कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने गलत कमिट अगर कर दिया है तो उस कमिट को आप डिलीट तो नहीं कर सकते, बट उस कमिट पे जाके एक तरीके से आप टैगिंग कर सकते हो कि अगर कोई भी किसी के पास भी ये फाइल जाती है तो रीड करेगा इट्स कमिट बाय मिस्टेक प्लीज इग्नोर, तो इस फाइल को कोई रीड करेगा ही नहीं। तो दिस इज द वन काइंड ऑफ रिवर्टिंग, इसी को बोलते हैं रिवर्ट। तो वैसे रिवर्ट का मतलब है एक स्टेप बैक आना। तो यहां पर क्या है कि मैंने वो एक स्टेप बैक आके उसको न्यू टैगिंग कर दी है कि आप इस फाइल को क्या कर दीजिए, रिवर्ट कर दीजिए।
यूज केस नहीं है ना, ये आपकी लोकल रेपो के अंदर है कवलप्रीत। अब आप जब यहां से इसको पुश करोगे, तो पुश जब करोगे तो ये आपकी गिट हब के अंदर जाएगी। तो गिट हब पे अगर कोई भी करेगा तो वहां पे ये फाइल उसको ऑटोमेटिकली दिख जाएगी कि लाइक मैं कहता हूं कि विपुल ने यहां से पुश कर दिया। अब विकास को एडिट करना है तो ये फाइल को विकास एडिट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही वो देखेगा इस पे कमेंट कि अच्छा ये गलत कमिट हो गया, तो वो इस फाइल को एंटरटेन ही नहीं करेगा। क्यों क्या करेगा, स्किप कर देगा। और अगर आपकी कंपनी स्टोरेज को मैनेज कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली इस फाइल को स्टोरेज से डिलीट कर देंगे। ये वही है ना कि आपकी एक बार मेल, आपने मेल ड्रॉप कर दी बाय मिस्टेक से, आपने मेरे को मेल कर दी, तो आपके पास तो कंट्रोल ही नहीं है। बट जीमेल क्या कर सकता है, जीमेल डिलीट कर सकता है। आपने क्या करा, तुरंत एक और मेल करी, गाइस पहले वाली मेल को क्या कर दीजिए, आप इग्नोर कर दीजिए। या गिटहब से पॉसिबल है, गिटहब से तो आप कोई भी फाइल मैन्युअली डिलीट कर सकते हो, वहां से आप डिलीट कर सकते हो। बट मैं यहां से बता रहा हूं कि लाइक अगर आपने मेरे को कोई एक मेल कर दी, तो वो मेल तो रिटर्न नहीं आ सकती। आप क्या करोगे, सर प्लीज इग्नोर माय फर्स्ट मेल, यस और नो। तो मैं क्या करूंगा, आपकी पहली वाली मेल आईडी को इग्नोर करूंगा। बट अगर मुझे दोनों ही मेल डिलीट करने हैं तो वो जीमेल अपने स्टोरेज से कर सकता है, मेरे पास कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मेरे पास से तो कमांड जा चुकी है। गॉट इट द पॉइंट गाइस? रवि, विपुल, विकास, कवलप्रीत, एवरीवन, हु इज कॉलर वन गाइस? गाइस योर नेम, कॉलर वन, प्लीज अपना नेम बताइए विद इन अ मिनट, अदरवाइज आई एम जस्ट एग्जिट, मैं आपको एग्जिट कर दूंगा। Now guys, this is a part of get revert. Clear guys? इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है जो कि लास्ट है गिट में, इससे ज्यादा गिट के अंदर कुछ नहीं है। नाउ द स्टैशिंग, एक गिट स्टैशिंग भी है। तो व्हाट इज द स्टैशिंग? स्टैश का मतलब क्या होता है गाइस? स्टैश का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैश? देखिए स्टैश भी ना आपका एक वन काइंड ऑफ रेपोजिटरी है, जो कि आपकी डायरेक्टरी के अंदर ही बनती है। तो जिस तरीके से मैंने यहां पर आपको बताया था ना, 3 पैटर्न्स बनते हैं इन वन इज वर्किंग डायरेक्टरी, सेकंड स्टेजिंग एरिया, एंड थर्ड इज ब्रांच। नाउ एक और यहां पे बनता है ऑटोमेटिकली, दिस इज कॉल्ड अ स्टैश, दिस इज कॉल्ड अ स्टैश, जिसको हम स्टैश या स्टैशिंग भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग? लाइक कि यहां पर यू कैन राइट द एनी कोड, डेवलपर राइट द कोड, डेवलपर राइट द एनी कोड। जो डेवलपर है वो यहाँ पर एक FILE फाइल 1 बना रहा है और उस फाइल 1 के अंदर अपना यहाँ पे काम कर रहा है। तभी इमीडिएटली मैनेजर आता है, यार प्लीज इसको स्किप करके नया काम करो। कहता है सर मेरा अभी ये काम अप्रोक्सीमेटली 25% हुआ है। कह रहे नहीं यार, इस काम को ऑन द स्पॉट बंद करके आप नया काम स्टार्ट करिए। ये कंडीशन आ सकती है या नहीं आ सकती है एवरीवन? गाइस ये कंडीशन पॉसिबल है? कवलप्रीत, इज इट पॉसिबल कि आपका मैनेजर कह रहा है यार ये काम बंद करिए और इमीडिएटली फाइल 2 पे काम करना स्टार्ट करिए? आप क्या करोगे कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप इस फाइल को यहां पर मूव करा सकते हो। जैसे आप यहां पे मूव कराओगे, यूर स्टेजिंग एरिया इज फ्री एंड नाउ यू कैन स्टार्ट द फाइल टू वर्क। व्हेन दिस फाइल इज डन, अगेन यू कैन मूव दिस फाइल स्टेजिंग एरिया टू वर्किंग स्पेस एंड स्टार्ट द वर्क। तो अगर आप अपने काम को होल्ड कराना चाहते हो, क्योंकि अगर आपने स्टेजिंग एरिया के अंदर रखा तो वहां से तो कमिट हो सकती है फाइल, बट आप उन फाइल्स को कमिट ही नहीं करना चाहते, अनकंप्लीट फाइल है, तो आप उन सारी फाइल्स को कहां पर होल्ड करा सकते हो? अपने स्टैशिंग के अंदर।
Got it the meaning why we are using the stashing? Bipul, Ravi, everyone. राइट राइट ठीक है तो वर्क got it. को होल्ड कराने के लिए हम अपना वर्क कर रहे हैं. So now how to use for stashing? So just we have this start. I'm just again create a first file one. So now I'm just go to here and now clear clear, and now I'm just create a one file like tvim, or now I'm create a file like a touch touch, and I'm create a delhi Delhi work. So I'm create a file with the name of Delhi work, and get add dot and get commit commit -m and between inverted comma. This is my DLHI Delhi WR work. और गाइस मैंने इस फाइल को क्या कर दिया, कमिट कर दिया. And now after that now you can see the get status. So there is a no any files are available, or when you tap the command get stash, so there is no any file is available in get stash also. Now I'm just type vim Delhi work and like hello everyone. मैंने ये लिखा और अनकंप्लीट कमांड है. सो कंट्रोल WQ, मैनेजर ने कहा नहीं यार आप इसी काम को अभी स्टॉप करिए, आप इसको मत करिए, आप दिल्ली वर्क ना करके नोएडा वर्क स्टार्ट करिए. मैंने क्या करा, इसको सेव करा एंड आई टैप द कमांड git stash and give the file name. So I meant tap the command git stash and यहाँ पे क्या आ रहा है, save the working directory and index state WIP of master. This is my Delhi work and you can type the git stash. तो अभी भी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, वेट एक मिनट, get statu status. तो get status इस क्लियर हो चुका है, get stash भी मेरा यहाँ पे हो गया है. और 1 minute guys, no files are available, so clear 1 minute guys, 1 minute मैं थोड़ा सा याद कर लेता हूँ. Create a file then git commit. So I'm create a one file like a cat Delhi work. Okay, work सेव ही नहीं हुआ था, तो like vim Delhi work I for insert we hello every everyone, now escape colon WQ, now cat Delhi work hello everyone, and now we can type the command git get stash stash. And now tap the git stash file file. So git stash show. या सो गाइस देखिए यहाँ पर ये फाइल यहाँ पर एडिट हुई है. तो कमांड थी git stash show, यानी कि अगर आपको कोई भी फाइल को स्टेजिंग एरिया में डालना है तो कमांड है git stash. और अगर आपको किसी भी फाइल को देखना है तो आपकी कमांड है git stash show. तो दिस इज अ कमांड git stash show या git stash list. तो अगर आप git stash list करोगे तो अभी आप देखिए कि मैंने दिल्ली वर्क को ही 2 बार एडिट कर दिया था, so it show the 2 files.
तो यहाँ पे 2 बार मैंने 2 फाइल्स को 2 बार एडिट करा था, तो यहाँ पे दोनों फाइल्स यहाँ पे क्या दिख रही हैं, एक है, एक की आईडी है stash@0 और एक की आईडी है stash@1। नाउ मैं अगेन दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इज इट क्लियर एवरीवन गाइस, इज इट क्लियर? क्या करा है मैंने यहाँ पे? Simple sir guys, I'm first create a CL here clear. Now I'm create a one file like touch touch, or like I'm just create a file vi like vim Noida work. Now hello Noida. Now escape colon wq. ये काम मेरे को रोका, तो मैंने अब just type the command get stash stash, and now you can see the get stash list. तो वेट एक मिनट, मैंने कमिट नहीं करी, तो पहले कमिट करनी पड़ेगी, फिर वो वर्क मेरा सेव होगा। तो गेट स्टैश एक बार मेरे को कमिट करनी पड़ेगी फाइल गेट स्टैश ना करके गेट एड डॉट एंड गेट COMMIT कमिट बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। आप चाहे ब्लैंक फाइल को कमिट करके रख लीजिए, देयर इज नो इशू, -m एंड बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा my NOIDA Noida WORK work, and now again I'm just go to edit this file. So VIM Noida work and I4 insert hello Noida, how are you? Now escape colon WQ, or you can see the get status STATUS status. So now at this time this file is available. And if I'm tap the command git get stash get stash, and now if you can tap the get status, so now the your working tree working space is clear. तो दिस फाइल, अब ये फाइल कहां पे चली गई, जो नोएडा वाली फाइल थी वो कहां पे चली गई, क्योंकि मैंने तो कमिट ऐड करी नहीं है, बट मैंने कहां पे कौन सी कमांड चलाई है, स्टैश चला दी। तो यानी कि ये फाइल अब मेरे स्टेजिंग एरिया में आके स्टेजिंग एरिया में चली गई है। गॉट इट कवलप्रीत? नाउ क्लियर विपुल एवरीवन? देन यू कैन सी, अगर आप देखना चाहते हो गेट स्टैश शो, तो शो करके आप देख सकते हो। तो शो से नहीं दिख रहा, बट यू कैन टैप द लिस्ट। व्हाट हैपन यार, गेट स्टेटस शो, गेट स्टेटस लिस्ट, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। यार फिर से कमिट करने के बाद क्यों नहीं आ रही फाइल, इसमें पंगा ही होता है। और दोनों मेरी फाइल कमिट हो चुकी है, देखिए हेलो नोएडा लिख रहा है यहाँ पे, I4 इंडिया, और मेरे को जो भी अपना काम स्टार्ट करना है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। गेट स्टेटस, सॉरी यार, गेट स्टैश कमांड चलानी थी, मैं भी स्टेटस कमांड चला रहा हूँ। गाइस बता भी दिया करो यार, गेट स्टैश लिस्ट कमांड थी, ये देखिए यहाँ पे ये नोएडा वर्क यहाँ पे आ रही है फाइल। गॉट इट गाइस? तो गेट स्टैश फाइल दिख गई आप लोगों को, तो वो स्टेटस लिस्ट करने लग गया था। नाउ क्लियर एवरीवन? अब गाइस आता है कि आपको ये फाइल स्टैश से बाहर कैसे लानी है। आपने इस फाइल को गेट स्टैश में तो पहुंचा दिया, अब इसको गेट स्टैश से बाहर कैसे लानी है। तो देखिए हर उसके आगे एक स्टैश आईडी इन्होंने दे रखी है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैश फाइल, लाइक मैं ये वाली फाइल को बाहर लेके आना चाहता हूं, मैं इस फाइल के अंदर काम करना चाहता हूं अभी। So now you can just type git stash apply, git stash
अप्लाई और गिव द आईडी, लाइक का मैं इस वाली आईडी को यूज कर लेता हूं, दिस इज कॉल्ड अ आईडी, तो दिस इज अ स्टैश @ और बिटवीन नाउ इंटर, और देखिए यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों फाइल उसने दे दी, वो बता रहा है बोथ फाइल्स आर गिट कमिट ए, तो यहाँ पे दोनों फाइल, अगर आप नोएडा वाली फाइल को लाना चाहते हो तो गिट स्टैश गेट स्टैश और आई थिंक सो वेट मिनट 0 error stash valid get stash valid, एक मिनट गेट STATUS स्टेटस, तो ये दिल्ली और नोएडा दोनों वर्क आ गई हैं आपकी। और अगर आप स्टैश को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो कि आपका स्टैश, देखिए यहाँ से क्या है ना, फाइल आपकी स्टैश के अंदर अभी भी रहेंगी, क्योंकि आपका जो स्टैश है ना वो परमानेंटली क्या है, डिलीट नहीं होगा अभी तक। तो आप क्या करोगे, गेट स्टैश और द कमांड आई थिंक सो CLEAR क्लियर है, गेट स्टैश क्लियर करा और गेट स्टैश लिस्ट करोगे, तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। बट अगर आप दोबारा से यहाँ पे क्या करा दोगे, GIT गेट STASS स्टैश, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे अभी लाइक गेट STATUS स्टेटस और स्टैश दोनों अलग अलग कमांड है, दो फाइल्स हैं, GIT गेट STASS स्टैश and then type the git status, their working tree is clean. Now git stash list, you can see कि आपकी यहाँ पर फाइल फिर से आ गई है, नोएडा वाली माई नोएडा वर्क, और अगर आप इसको दोबारा से वहां पे पहुंचाना चाहते हो तो यू कैन यूज द अप्लाई, अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो यू कैन टाइप द गेट स्टैश क्लियर, और क्लियर करने के बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे लिस्ट, तो इट्स नॉट शो द एंड लिस्ट, और अगर आप दोबारा से देखते हो गेट स्टेटस तो इट्स शो नो एंड लिस्ट, तो मैंने वहां से मूव नहीं करी थी, फाइल को डायरेक्टली क्लियर कर दिया था। तो स्टैश के अंदर किस तरीके से आप अपनी फाइल्स को ऐड करेंगे और किस तरीके से आप अपनी फाइल्स को वहां से रिकॉल करेंगे, तो दीज आर द प्रोसेस। तो गाइस यही है आपका कि ब्रांचेस क्या है, गेट कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, व्हेन यू मर्ज द ब्रांचेस, जब आपके कॉन्फ्लिक्ट के एरर आते हैं, आपको कोई कमिट एडिट करना है तो यू कैन एडिट थ्रू द रिवर्ट कमांड, आपको अगर किसी भी फाइल को स्टेजिंग एरिया से वर्किंग स्पेस के अंदर रिटर्न लाना है तो यू कैन यूज द रीसेट कमांड, अगर आपको अपना कमिट्स को डिलीट करना है यानी कि स्टेजिंग एरिया और वर्किंग डायरेक्टरी को क्लीन करना है तो यू कैन टैप द रीसेट -हार्ड कमांड, एंड अगर आपको अपने लॉग्स यानी कि अपने कमिट देखने हैं कि हाउ मेनी कमिट, डिटेल कमिट देखने हैं तो यू कैन टैप द गेट लॉग, तो दीज आर द डिटेल कमिट्स। लेकिन अगर आप ये इतने कमिट्स मैंने यहाँ पे करे हैं तो सारे कमिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, बट अगर आप इन सबको एक सिंगल लाइन के अंदर देखना चाहते हो, अगर आप इनको सिंगल लाइन के अंदर देना चाहते हो तो गेट लॉग -1 लाइन, यू कैन यूज दिस कमांड, सो आपको एक शॉर्ट में एक सिंगल लाइन के अंदर दिख जाएंगे कमिट, डिटेल में नहीं दिखेंगे। अगर आप ऑथर देखना चाहते हो तो गेट कॉन्फिग -list लिस्ट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है द गेट CONFIG, गेट कॉन्फिग -list, तो यू आर वर्किंग फॉर विच यूजर, आप करेंटली किस यूजर से काम कर रहे हो, उस पर्टिकुलर यूजर की आईडी क्या है, द मोड एक्टिव है तो ट्रू है, तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल आपको शो कर रहा है। अगर आप ब्रांचेस देखना चाहते हो यू कैन टैप द गेट ब्रांच, अगर आप गिट का वर्जन देखना चाहते हो यू कैन टैप द कमांड इज गेट वर्जन, अगर आप गिट की लोकेशन देखना चाहते हो यू कैन टैप द गेट विच गेट, और देन यू कैन जस्ट कंटिन्यू, आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। देयर द छोटी छोटी चीजें इसके अंदर, काफी सारी चीजें हैं तो वो आपको धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो जाएंगी। गॉट इट द प्रॉब्लम गाइस? अब यहां पर एक और चीज है,
एक और चीज क्या है कि लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ TOUCH टच लाइक मैंने एक फाइल बनाई लाइक ASD and LKJ and now I'm just get status, sorry, get status, and now I'm just like git get add and like a dot LKJ and again get status status. तो आपकी एक फाइल पड़ी हुई है वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, एक डायरेक्ट फाइल पड़ी हुई है स्टेजिंग एरिया के अंदर. नाउ यू कैन टाइप द git get clean clean hyphen n, sorry. So would removed ASD. Now you can tag get status. तो वो दिखा रहा है get removed, but it show the confirmation dry run. तो dry run का मतलब है कि वो आपको दिखाएगा कि अनट्रैक्ड फाइल, यानी कि ऐसी फाइल जिनको आपने ट्रैक्ड ही नहीं करा है, जो कमिट ही नहीं हुई है, ऐसे ही आपके वहां पे पड़ी हुई है. तो आप ऐसी फाइलों को सर्च करना चाहते हो जो आपकी कमिट नहीं हुई है, तो वो बता रहा है ASD. तो ASD फाइल क्या है, क्योंकि अगर आप देखिए LKG जो फाइल है वो फाइल आपको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो फाइल आपकी क्या दिख रही है वहां पे, बट यहाँ पे दिखा रहा है अनट्रैक्ड फाइल. और अगर आप ऐसी भी किसी भी अनट्रैक्ड फाइल को डिलीट करना चाहते हो, ओनली अनट्रैक्ड फाइल को, क्योंकि मैंने हाइफन हाइफन हार्ड कमांड चलाई थी, तो हाइफन हाइफन हार्ड कमांड से क्या स्टेजिंग एरिया और वर्किंग डायरेक्टरी दोनों ही क्लीन हो गए थे. बट अब मैं अगर गेट क्लीन हाइफन F कमांड चलाता हूं, एंड नाउ यू कैन सी गेट स्टेटस, तो यानी कि आपका अनट्रैक्ड फाइल क्लियर हो जाएगी. अनट्रैक्ड का मतलब है कि आपके वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर काफी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ फाइल ऐसी हैं जो आपकी यूज की नहीं है, तो आप गिट से उनको किस तरीके से डिलीट करोगे. गॉट इन माय पॉइंट गाइस? एवरीवन? हेलो गाइस, क्लियर है? क्लियर? नाउ वन मोर थिंग, एक और कमांड है गेट tag टैग. तो एक और आपकी कमांड है गेट टैग. तो गेट टैग का मतलब है लाइक अगर मैं यहाँ पे एक कमांड चलाता हूं नॉर्मली, गेट टैग हाइफन A and give the India tag tag hyphen M, and 1 minute guys, I'm just check it between लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ git get log hyphen hyphen 1 line. these are the मेरे सारे के सारे commits आ रहे हैं, and now I am just type simply like एक just के tag tag hyphen A and between give the tag name is my India India tag tag and hyphen M, and hyphen M के बाद I'm just put the command is called my this is
my new tag tag and then space the commit ID. Guys, just time check it. ये ना एक्चुअली एक कमांड है जो मैं यूज करना चाह रहा था यहाँ पे कि टैगिंग करना, कि आप जो है ना अपने टैग को ओवरराइड कर सकते हो. So like get show, और अगर आपको like कुछ भी पता है like आई एम आस्किंग like my, so it's give you कि अगर आप टैग के नाम से भी ना अपना सर्च कर सकते हो पर्टिकुलर. सो लाइक आप कमेंट आईडी या आप टैगिंग के बेस पे कुछ चीज सर्च करना चाहते हो, सो आप वो भी सर्च कर सकते हो. गेट टैग गेट शो, या सो देखिए मैंने यहाँ पे कमांड चलाई है गेट शो. तो गेट शो कमांड से वो आपको दिखा रहा है माई नोएडा वर्क न्यू फाइल इन नोएडा. सो ये आपको नॉर्मली कमांड से यहाँ पे दिखा रहा है गेट शो. सो इट्स नॉट शो द क्लियरली. तो गाइस ये कमांड प्रॉपर चल नहीं रही है, नो इशू. तो गाइस दिस इज अ गेट, आपका गेट कंप्लीट हो चुका है नाउ. थैंक यू, होप सो कि आपको चीजें समझ में आई हो, जो भी चीजें हमने गेट के अंदर कवर करी है. एनी क्वेश्चन? सो हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, एंड देन उसके बाद वी हैव स्टार्ट द जेंकिन.